الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درش پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام. میرے معزز دوستوں بزرگوں، ہمارا پچھلے ہفتے سے ٹاپک چل رہا تھا دنیا دارالغرور ہے، دھوکے کا گھر ہے. آج کا انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کر لیں گے، لیکن آج کے قرآن کریم آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیجیے. جس دن نہ فائدہ پہنچائے گا، جس دن نہ فائدہ پہنچائے گا مال اور نہ بیٹے، مال اور نہ بیٹے، صرف وہ بچے گا جو حاضر ہوگا اللہ کے حضور قلب سلیم لیے ہوئے. قلب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے قلب، کیونکہ وقف ہوتا ہے، قلب وقف ہے. مال اور نفس کے بدلے جنت کا سودا کیا ہے. یہ مال اور نفس اللہ کی امانت ہے. دراصل یہ دنیا کی محبت نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ تو طے ہو گیا کہ صرف قلب کی قیمت ہے، دل کی قیمت ہے، کیونکہ دل مقصود اللہ کا گھر ہے اور تجلی گاہ ہے. جیسے کعبۃ اللہ، تو ہم کہتے ہیں کعبۃ اللہ، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رہتے تو نہیں ہیں، اللہ کی تجلیات ہوتی ہے. اسی طرح قلب جو ہے، یہاں بھی ایک کعبہ ہے، ایک تین کعبہ ہے. ایک کعبہ مکہ مکرمہ میں ہے، ایک کعبہ یہاں ہے، ایک اسی کعبہ کے اوپر کعبہ ہے. اس کے اوپر کعبہ کے اوپر جو کعبہ ہے اس کی فرشتے طواف کرتے ہیں. اس کے طواف ایک فرشتہ آج طواف کرتا ہے، قیامت تک اس فرشتے کی دوبارہ باری نہیں آئے گی. اتنے فرشتے اس کے طواف کرنے والے. ایک وہاں یہ اللہ کی تجلیات وہاں آتی ہیں، کیونکہ اللہ اسی طرح ایک قلب کے اندر گوشت کا لوتھڑا ہے. دیکھیں 4 مہینے کے بعد یہ گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، وہ اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے، اس سے پہلے نہیں ڈالی جاتی. اسی لیے 4 مہینے سے پہلے اگر خدا نخواستہ بچے کا کوئی معاملہ ہو جائے، کیونکہ اس میں ابھی روح نہیں ہوتی ہے، روح کے بعد آپ اس کو بچے کو ضائع نہیں کر سکتے. تو وہ روح جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قلب کا ایسا مرکز ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے صاف و شفاف ہو. لیکن ہماری صاف و شفاف اور اس کے اندر تجلیات کا ہم نے کھڑکیاں سب دروازے بند کیے ہوئے ہیں، کیونکہ مقصود ہے ہمارا دنیا اور دنیا سے محبت. اور دنیا سے محبت کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. حق، حلال، حرام، لالچ، ہے نا، کوئی بھی چیز کریں. اگر دنیا کو 3 حصوں میں ہم رکھ لیں، جیسے 3 کعبۃ اللہ ہو گئے، ایسے دنیا کو 3 حصوں میں رکھ لیں تو دنیا کی محبت پھر نہیں آئے گی. پھر آپ اربوں روپے کا بھی کاروبار کریں، 100 کا کریں، کچھ بھی کریں، پھر کوئی مسئلہ نہیں، نقصان نہیں کرے گا. یا تو انسان یہ سمجھے دنیا، ہم جاتے ہیں اسٹیشن کے اوپر تو ریسٹ روم ہوتا ہے، ریسٹ روم ایسے ہی ہوتا ہے، تھوڑی دیر رکتے، ٹرین آتی، چلے جاتے ہیں اپنے منزل مقصود کی طرف. دنیا کو ہم ریسٹ روم سمجھے کہ یہ عارضی ہم یہاں بیٹھے ہوئے. یا ہم دنیا کو جیل سمجھے، جیل کے اندر اگر فرسٹ کلاس دی جائے، سپرنٹینڈنٹ آف جیل سے طے کر لیا جائے تو وہ فرسٹ کلاس جیل دیتے ہیں، اور وہ قیدیوں میں خادم بھی دیتے ہیں اور تمام سہولت دیتے ہیں. تو اس کے بعد کیا چاہیں گے؟ اس سے کہیں گے کہ تم جیل میں رہو، تم جیل میں رہنا زندگی بھر پسند کرو گے، تم کو تمام سہولتیں ہیں، ہر چیز دی ہوئی ہے، فرنیچر فرنیش سب چیز دی ہوئی ہے. تو وہ کہے گا خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالو، خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالو. میں وہاں سے حج کر کے آیا تو سیدھا یہاں آنے کے بعد دوسرے دن جیل میں گیا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ہمارے 2 کاروباری دوست وہ جیل کے اندر تھے. اور وہاں جیل میں اب کاروباری ہے تو شاید اپنی سیٹنگ تو آدمی جیل میں کر ہی لیتا ہے. تو اتنا روئے یہاں سر رکھ کر زاروں قطار، مجھے کہتے ہیں اقبال بھائی مجھے خدا کے لیے جیل سے نکالو. ہم یہ جیل سمجھے، ہمارے لیے جیل ہے، سجل ہے ہمارے لیے. یہ تو مومن کے لیے جیل ہے، یہ کافر کے لیے یہ جنت ہے، ہمارے لیے نہیں ہے. ہم اس کو عارضی سمجھے. جب عارضی سمجھیں گے تو ہم عارضی رہیں گے نا. یا اس کو تیسرا، ہم اسٹیشن کے اوپر کیا ریسٹ روم ہوتا ہے، سب چیز ہے،
और ये होता है कि जल्द से जल्द अपनी गाड़ी है अपने जाकर हमें मुल्तान, मैं मुल्तान जाता था बहुत ज्यादा, हर साल हर महीने वसूली के लिए जाना, मुल्तान लाहौर गुजरावाला जाना पड़ता था, 40 साल पहले की बात करता हूँ। तो रात को 2 बजे वहां मुल्तान से गाड़ी चलती थी आगे जाने के लिए। तो 12 बजे के बाद वो हरम के, पहले तो बड़ी होटलें नहीं थी, हरम गेट के पास वो होटलें होती थी, तो वहां उतरते थे। तो रात को पुलिस वाले तंग करते, वहां चले जाते रेस्ट रूम में, वहां स्टेशन के ऊपर बैठ गए। मैं वहां अल्लाह से रोते रहता था। मैं कहता था कि अल्लाह मुझे आसान रिस्क दे, ये लोकल वाला रिस्क है, इसके अंदर रात को जाना, दिन में जाना, इतनी मेहनत करना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसके बाद अल्लाह ने वो ये गैर महदूद एक्सपोर्ट की लाइन के ऊपर लगा दिया, तो हम सुबह हमने ये काम खत्म हो गया। लेकिन फिक्र ये होती थी किसी तरह भी ट्रेन आ जाए, हम पहुंच जाए, आगे चले जाए, लाहौर पहुंच जाए, ठीक है। 1 मिनट भी कोई कह देवे ना आप ज्यादा रुक जाओ, तो रुकना नहीं चाहते। इस तरह ये दुनिया भी रुकने की नहीं है। ये या तो बैतुल खला, इसको हम समझ लें कि बैतुल खला के अंदर आप कितनी देर रुकेंगे। बैतुल खला में आप अपनी जरूरत पूरी कीजिए, जरूरत पूरी करने के बाद दुआ पढ़िए, दुआ पढ़ के जाइए, पढ़ने के बाद वहां अपना जरूरत पूरी कर लीजिए, फौरन बाहर निकलिए। अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो ये जो पेट की बीमारियां होती है, ये कॉमोड की वजह से आई है। कॉमोड, हम पहले कॉमोड नहीं था ना, ये सुन्नत तरीका तो नहीं है, लेकिन अब हमारी आदत हो गई, हम सब ऐसा हो गया कि बैंड नहीं हो सकते, हमें कॉमोड रखना पड़ता है। तो अब लेकिन कॉमोड में माइनस पॉइंट ये हो गया कि उसमें थोड़ी ज्यादा देर इंसान लगाता है। अगर 10 मिनट लगाना हो, 5 मिनट लगाना हो, तो वो 5 मिनट और बढ़ जाती है कॉमोड। या तो इसको बैतुल खला समझे, या रेस्ट रूम समझे, या जेल समझे। अब ये तीन चीज हमारी समझ में आ जाएगी तो फिर दुनिया का कोई मसला नहीं है। फिर दुनिया हमारे लिए नेमत है। माँ बाप नेमत है, कारोबार नेमत है, बीवी बच्चे नेमत है, सब चीज नेमत है। हम कोई ऐसा काम करें ही नहीं ना जिसके आर्जी रहना है। जहाँ पर हम बैतुल खला में रेस्ट रूम में आर्जी रह रहा हो, तो वहां तो कोई आदमी गलत काम करता है, कहते हैं जल्दी जल्दी निपटाओ, यहाँ से चले जाओ, या जैसी भी जिस तरह भी गुजारा करना है गुजारा कर लो। वहां दूध पत्ती चाय की फिक्र नहीं करता, पानी वाली चाय भी पी लेता है। यहाँ जब ये जहन में हो जाए कि हमारा आखिरी स्टेशन, आखिरी घर अल्लाह का घर है, वहां जाना है, और ये दिल को साफ और शफाफ और पाक होकर लेके जाना है। हम ये दुनिया में दिल लगाने की वजह से अल्लाह की नाफरमानी वाले काम कर लेते, कुछ ना कुछ ऐसे काम कर लेते। अल्लाह की नाफरमानी वाली काम नहीं करते तो माफ नहीं करते किसी को। हम इसका हम बुक्स रखते हैं दिल के अंदर, हम भुला नहीं सकते। हम माफ करना, ये बुक्स रखना। एक गुनाह, मेरे दोस्तों, एक जब गुनाह इंसान करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, तो एक डॉट दिल में लग जाता है, एक निशान लग जाता है। ये सामने आईना है, अगर आईने के ऊपर डॉट लगते गए तो आपको रोशनी के ऊपर आपका चेहरा नजर नहीं आएगा। हमारे दिल के अंदर ये डॉट लगे हुए हैं, अंदर कहाँ से नूर आएगा? हमने तो बंद किया हुआ है दिल के अंदर नूर। अल्लाह की जो मरकज है, काबतुल्लाह है, तजल्लियात का घर है, उसको हमने नुक्तों की दुनिया की लालच, दुनिया के मामलात के अंदर ऐसे फंसे हुए हैं, क्योंकि हमने जिंदगी इसी माहौल में गुजारा है। हमने इसी माहौल के अंदर अपनी जिंदगी 20 साल, 25 साल, 50 साल, 60, 70 साल हो गए, हमने वही देखा है। अब जब वही देखा है तो वही हमारे लिए मोहतरम और ज्यादा हो गई, हम हर चीज में उसको तरजीह देते, फना नहीं होते। हमारी तसव्वुफ के अंदर दो बातें, एक तो इज्तिमाई और एक फनाइयत है। जब तक इज्तिमाइयत ना होगी और फनाइयत ना होगी, आपको इसीलिए नमाज है ना, जमात की नमाज, ईद की नमाज, जुम्मे की नमाज, उम्रा, आप हज में जाते तो इज्तिमाई है, इज्तिमाई सब इज्तिमाई होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से वो अमाल हमें मांगने चाहिए इस्तकामत के साथ, मखलूक के साथ। अब क्या है, आप पहली सफ के लिए जाते हैं, हमें इखलाक हम बने ही नहीं अंदर से, हमारा जाहिर थोड़ा बहुत बन गया है। हम पीछे से जाते हैं, 10 आदमी को कंधों पे मारते हुए, आदमी को साइड में करते हुए, पहली सफ हमें मिल जाए। अरे आप दूसरी सफ में बैठे, पहली देख लीजिए अपने से उम्र रसीदा है, कौन है, कैसा है, किसी को आगे मौका दे दीजिए। हमारा तो मकसूद इखलाक है, तौहीद के बाद अमाल है, अमाल में इखलाक है सबसे पहले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जन्नत की जिम्मेदारी गारंटी, अच्छी जन्नत की, जन्नत के भी 4 जगह मैंने आपको बताया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं जमानत देता हूँ जन्नत में, घर की जन्नत में। तो इसमें जो अच्छा घर है उसकी जमानत, इसके इखलाक अच्छे हों। हमारे इखलाक कहाँ से होंगे? क्योंकि दुनिया हमारे फंसी हुई है, हमारा विजन नहीं है, ये दागदार दिल बना हुआ है। अरे बच्चियां आती है घरों के अंदर, फैमिलीज के अंदर है, रिश्तेदारों के अंदर है, पड़ोसियों के अंदर है, कितनी हमारे कितने हम गलाफत में कहाँ चले गए। हमें रुश्वत देना लेना, हमें पता है इस काम करने से, इस काम की बेस रुश्वत है। इस काम के अंदर वो बेस है कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सख्त नाराज करना है, मौला को नाराज करना है। तो फिर मौला से हम जंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, सिर्फ ये आर्जी दुनिया के लिए। आर्जी हम इतना घर बनाते हैं, तो इसको मरकज पूरे को तो बैतुल खला नहीं बना लेते, छोटा सा बना साइड के अंदर। ये दुनिया छोटी सी है,
छोटी सी साइड में रखने की है, साइड में रखिए, वो हाथ में रहेगी। अगर छोटी होगी तो हाथ में रहेगी। छोटी इसको नहीं कहते, आप इंडस्ट्री लगाइए वो भी छोटी है, लेकिन उसके अंदर बुनियादी तौर पे आपकी निगाह ये हो कि कोई अल्लाह के नाराजगी वाला काम तो नहीं होगा। हमने आज 100 करोड़ बैंक के ले लिए, कल 200 ले लिए, मुबारकबाद है, आपने मिल डाली, बहुत अच्छी मिल है फलानी, अल्लाह से जंग की है, वहां जंग करके हमने काम को बढ़ाया है और इसको मुबारकबाद दे रहे हैं। और बुनियाद आप अल्लाह के सूद लेकर माँ से जिना करने के बराबर है। माँ से जिना करे और काम को बढ़ाए, फिर क्या बात हुई, कहां से बरकत आएगी? अरे नस्लें नहीं चलेंगी, औलाद नहीं चलेगी। औलाद का दुख सबसे बड़ा दुख होता है और सुख सबसे बड़ा सुख होता है। ये औलाद का सुख नहीं मिलेगा। औलाद का सुख चाहिए तो सुख वाले अमाल करने पड़ेंगे, और सुख वाले अमाल ये है अल्लाह को नाराज ना करें। फल कम पढ़ रहे कोई बात नहीं, उम्रें कम कर ले कोई बात नहीं, आप हज नफली हज कम करें कोई बात नहीं, अल्लाह को ना मौला को नाराज ना करें। मौला को नाराज करेंगे अल्लाह से, ये हर एक इंसान को पता है कि अपने आप को धोखा देता है कि मैं अल्लाह को नाराज कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ, हिले निकालते, हिले विले अल्लाह क्या नहीं चलेगा। अल्लाह को राजी करने के लिए प्योरिटी चाहिए अल्लाह के पास, हम इंसान के पास। आज हमारे एक शेर सुन लीजिए, मैं अक्सर सुनाता हूँ, ये दिल है ना, दिल को बनाइए, बसाइए, और ये अगर उजड़ गया ना, जो जमीन उजड़ जाती है, जब एक नुक्ते नुक्ते लगते लगते वो उजड़ जाएगा, तो फिर इसके बाद खेती बाड़ी नहीं हो सकती है। जमीन जो पथरीली खत्म हो जाए, अगर नहीं आपने इसका ख्याल किया, कुछ अरसा गुजर जाएगा, तो उसको तो कत्ल करना भी आसान लगेगा। मैंने सूद का कहा है, सूद क्यों हजम होता है हमें? एक शख्स को हजम नहीं होता, एक को सूद लेता है हजम हो जाता है, फिर तो और लेता है, फिर और लेता है, तो इसके दिल अंदर से ख्वाजा हसन बख्श ख्वाजा हसन के पास रहमतुल्लाह अलैह के पास आए, कहा कि मेरे आप मुझे बयान करते हैं, मुझे असर नहीं होता, मेरा दिल कहीं से कबूल नहीं करता। तो उन्होंने कहा, हसन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम्हारा दिल मर गया है। अगर सोया हुआ होता ना, सोया हुआ नहीं है, अगर सोया हुआ हो तो झंझोड़ते तो वो जाग जाता। हमारे दिलों की हालत अब ये हो गई, ये खत्म हो गए, मर गए हैं इसके अंदर। तो तब हम इसको बुराई को बुराई नहीं समझते। बुराई को बुराई समझेगा तो बचने की कोशिश करेगा। अगर समझाए बुराई को बुराई नहीं समझता, ना इखलाक, ना मामलात, ना माशरा, तो वो कहां से अपने आप को ठीक करने की कोशिश करेगा? हमारी तो जमीन, दिल की जमीन है ना, ये वैरान और उजड़ गई है। ये जो उजड़ी हुई बस्ती है, और ये जब बस्ती खत्म हो जाती है तो उसको बसते बसते फिर बहुत टाइम लगता है, जीरो हो जाती है, या फिर पौधे, बारिश कितनी भी हो जाए वो जमीन वैसी रहती है। अब अल्लाह वालों के पास आएंगे, अमाल करेंगे, इस्तकामत के साथ करेंगे, अल्लाह से तौबा करके मांगेंगे, रोएंगे। देखिए इसके जो आपने ये नुक्ते लगे हुए, इसको धुलेंगे कैसे? हम सब चाहते हैं कि हमारी मौत से पहले ही दिल साफ शफाफ हो जाए, और अल्लाह को हम दिल पेश करने के जैसे, क्योंकि अल्लाह पाक को हाँ तो एक ही चीज मांगेंगे ना आपसे, और कोई चीज नहीं मांगेंगे, कल्ब सलीम मांगेंगे। जब कल्ब सलीम मांगेंगे, कल्ब है तो कल्ब यहाँ अमाल करके लाए होंगे तो होगा ना, कैसे होगा? और अमाल ये है कि अल्लाह को और अल्लाह के मखलूक को मोहब्बत करनी होगी, अल्लाह को नाराज करने वाला कोई अमल ना करना। और जो दब नुक्ते लग गए गुनाह के, नाफरमानी के, इंसान है हो जाता है, तो उसको तो एक आंसू का कतरा उसको धो देता है। अल्लाह से रोइए, आ कीजिए। हम इससे निकलते ही नहीं है कि वाह वाह से, हमारा दिल उजड़ा हुआ है। इतने सारे मसाइल मुल्क के आ रहे हैं, मुसलमानों मुल्क के अंदर आ रहे हैं, ये वैसे ही आ रहे हैं। एक शेर सुनिए, वैरानी भी देखे हैं, आबादी भी देखी है। वैरानी भी देखी है, आबादी भी देखी है। जो उजड़े तो फिर न बसे दिल, वो निराली बस्ती है। जो उजड़े तो फिर न बसे दिल, वो निराली बस्ती है। दिल का उजड़ना सहल सही, बसना खेल नहीं भाई। दिल का उजड़ना सहल सही, बसना खेल नहीं भाई। बस्ती बसना खेल नहीं, बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते ये बस्ती है। आसानी से नहीं होती है दोस्तों। हर चीज की इंसान फिक्र करता है। आप ये बताइए कि अगर एक दिल जो दागदार होगा, हम हशर के मैदान में खड़े हुए हैं, अल्लाह ताला ये दागदार दिल जन्नत के बदले में कैसे खरीदेंगे? ये दिल तो होना चाहिए ना, वहां तो कोई काम नहीं आएगा। क्या औलाद होगी, औलाद की औलाद काम आएगी? किसी को भूल जाएगा, पता भी नहीं होगा। न माल काम आएगा। जब माल होता है तो इंसान को मस्ती होती है, माल के साथ कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, शेरनी का दूध भी मंगवा लूंगा मैं, और वहां हाथी के दांत से दवाइयां बनती है उसकी मैं बनवा लूंगा, करोड़ों रुपए का खर्च कर देता है।
कुछ भी नहीं मिलता। इन पैसों से अल्लाह ताला पैसे, मैं नहीं कहता ना लो, ना मेहनत करो, मेहनत करो, लेना है कारोबार करना, इसके अंदर दिल अटका हुआ ना हो। स्टेशन के ऊपर, जेल के अंदर, बैतुल खला के अंदर अटका हुआ ना हो भाई, दिल की फारिग हो जाए, निकलता है इसके अंदर। तो एक दागदार हम सेब खरीदते हैं, अब वो सेब खरीदते हैं दागदार होता है, ऊपर से छिलके के ऊपर दाग होता है। आप जाते हैं, मैंने तो दुनिया में एक ही जगह देखा दागदार सेब को खरीदने वाले। वो कहाँ देखा? बॉम्बे में, इंडिया में जो हिंदू ताजिर होता है वो सस्ते सेब ढूंढता है और दागदार दिल भी कहता है हम साफ करके उसको ले लेंगे। वो वो जुल्मत वाले हैं वहां पर। जब जुल्मत होगी तो अकल मफलूज हो जाएगी, अकल है ना मफलूज हो जाएगी। जब आपका नुक्ते लगे हुए हैं कल के अंदर, जहां से विजन पैदा होना है, जहां से सोच पैदा होना है, ये रूह ही फैसला करती है। जिस्म की कोई कीमत नहीं है, जिस्म तो लाना है। आपकी जब रूह यहाँ से निकलती है तो वही जिस्म पड़ा हुआ होता है, दिमाग भी, हाथ भी, पाँव भी, सब वही होते हैं, लेकिन ये कोई काम के नहीं होते, ऐसे ही पड़े होते हैं, बेकार होते हैं। असल चीज रूह है, रूह को बनाना है। एक इंसान दागदार सेब नहीं खरीदता, सेब खरीदता है तो जाहिर उसका देखता है ठीक है या खराब है, उसके बदले खरीदता है। और अल्लाह ताला का आप चाहते हैं और हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला ये दागदार दिल हमारा जो है, जो अल्लाह के पास हम पेश करेंगे, इसको अल्लाह ताला खरीद दे जन्नत के बदले में। जन्नत इतना आसान सौदा है। अरे सबके पास पीसना पड़ेगा, रोज जी जी के मरना होगा और मर मर के जीना होगा इस दुनिया के अंदर, तब जाकर वहां अल्लाह सुब्हाना व तआला ऐलान कर दे हमारा हुस्न ज़न है। ऐसा ऐलान भी होगा वहां पर कि बगैर हिसाब की जन्नत में चले जाओ, अल्लाह ताला चाहे तो, जिसके ऊपर अल्लाह का फजल हो। लेकिन फजल की तरफ हमारा गुमान, हमारा हुस्न जन और हमारा रास्ता हम मुतय्यन करके चलने तो लग जाए। हम तो चलने वाले भी नहीं है। मैं कल भी कह रहा था कि 4-5 दिन हमारे मुल्क के बड़े क्रूशल हैं, और अल्लाह ताला से खूब दुआ कीजिएगा पाकिस्तान के लिए। हफ्ते तक, पीर तक जो हमारा ये सीएनसी का मामला है, तमाम मामला है, क्योंकि इस वक्त तो देखिए हम माशी तौर पे भी पाकिस्तान पाकिस्तान के ऊपर तमाम मुसलमान मुल्कों की नजर है कि ये मुसलमान का मरकज है, मुसलमान का वो मरकज है। अल्लाह ताला इसकी हिफाजत करे। इसकी हिफाजत के लिए, आफियत के लिए 4-5 दिन बहुत क्रूशल है, बड़े फैसले होने हैं। अल्लाह से रो रो के मांगिएगा कि अल्लाह ताला यहाँ आफियत वाला मामला फरमाए, आफियत वाला उम्मत के लिए मांगिएगा, पूरे आलम के लिए मांगिएगा, और खुसूसन पाकिस्तान के लिए हमने इसको मांगना है। चले हम स्ट्रेट अवे हमारे हजरत वाले के, हमारे आज की जो मनफूजात हैं इसको पर आ जाते हैं। बाब रहमत पे दस्तक आज का हमारा मौजूद है ना। ये जो कल्ब है ना, थोड़ी सी टेक्निकली हम थोड़ी सी, वे तफक्कुरुन फी खल्क़ि समावाति वल अर्ज़, हम दुनिया की तमाम चीजों के बारे में सोचते हैं, फिक्र करते हैं। हम क्या ये भी सोचते हैं, कभी फिक्र करते हैं? अब ईमानदारी से बताइए कि 5 मिनट 10 मिनट बैठकर कि हम अल्लाह को राजी करने वाला, अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अल्लाह को अल्लाह से मांगा है हमने। हमने हरम पकड़ के सब, मैंने तो देखिए हाजी इमदादुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने क्या मांगा था, कोई तुझसे कुछ, कोई कुछ मांगता है, इलाही मैं हूँ तुझसे तलबगार तेरा। तो अल्लाह ताला ने हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की, जिन जो आलिम और मुफ्ती नहीं थे, इनसे तमाम इंडिया के बड़े बड़े मशाइख सब बैठ हुए, और तमाम कितने हमारे जो सिलसिले उनसे चल रहे हैं। उन्होंने दुनिया नहीं मांगी, मांगना चाहिए, मैं नहीं कहता ना मांगे, जरूर मांगिए, लेकिन अल्लाह से अल्लाह को मांगा। आज हम अल्लाह से अल्लाह को नहीं मांगते, अल्लाह की तजलियात, अल्लाह की फजल नहीं मांगते, अल्लाह का कुर्ब नहीं मांगते। हम उसमें भी दुकानदार है कि अल्लाह पाक हमें जन्नत दे देना, अल्लाह पाक हमें हुरे दे देना। अल्लाह पाक देंगे, मांगिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन मखलूक है ये। अल्लाह से हमें मखलूक नहीं चाहिए, खाली चाहिए। जन्नत बनाने वाला हमें चाहिए, हुरे को बनाने वाला चाहिए। जब अल्लाह हमें मिल जाएंगे तो ये तो ग्रेवी के अंदर हमें मिल जाएंगे, जन्नत भी मिल जाएगी, उन्हें भी मिल जाएगी, और ये दुनिया को भी अल्लाह जन्नत बना देंगे। अगर वहां जन्नत मिलनी है ना, तो वो मरकज है। इसका मरकज का जो मिजाज होता है वो ब्रांच का मिजाज होता है। इसको जन्नत वहां मिलनी है, उसको यहाँ भी जन्नत मिल जाएगी। वो जन्नत ये नहीं है कि बहुत मालदार हो जाए, जन्नत ये नहीं है कि बहुत सारी औलादे हो जाए, और जन्नत ये है कि दिल का सुकून, दिल बन जाए। या दिल नहीं बना हुआ, और वहां जन्नत दिल लिए है, जहन्नम अजाब है, तो वो अजाब यहाँ दिल के अंदर भी अजाब आ जाएगा। इसका एक ही हल है, अभी सुनिए, हमारा अज़र वाला फरमाते हैं, मलफूज आते हैं, ये भी बड़ी जबरदस्त किताब है, अगर हो सके तो इसको भी प्रिंट करवा लीजिएगा। अल्लाह ताला ने अपने नाम की खासियत बताई है कि मेरा जिक्र करोगे तो एक दिन तुम मज़कूर को पा जाओगे, क्योंकि जो मेरा नाम लेता है गोया मेरा दरवाजा खटखटाता है। ध्यान से इतना जिक्र कीजिए। देखिए दो ही रास्ते हैं मेरे दोस्तों,
शॉर्टकट पता नहीं कितनी जिंदगी किसके पास है, कल हो हम ना हो, दो रास्ते हैं, तीसरा नहीं है। जिक्रुल्लाह, अहलुल्लाह, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। आप कितने भी चिल्ले लगा लीजिए, आप कितने दिन खानका में आइए, 25-25 साल खानका में है, हजरत वाला ने बहुत सारे लोगों को खिलाफत दे दी, कुछ पुराने पुराने लोगों को खिलाफत नहीं दी थी। तो हजरत वाला फरमाते हैं कि मैं क्या करूं, ये गीले के गीले रहते हैं, इनके दिल के अंदर वो नूरानियत पैदा ही नहीं होती है इसके अंदर, मैं इनको कैसे इजाजत दूं। ये दुनिया निकल नहीं पा रही है, दुनिया की लालच, दुनिया की तमा, वो तो कैसा कैसा बदनसीब इंसान है कि दुनिया की लालच लेकर बैठा है कल के अंदर, और फिर भी गुर्बत भी है, कामयाब भी नहीं है, वहां का भी दुखी और दुनिया का भी दुखी। दो ही चीजें, जिक्रुल्लाह, अहलुल्लाह। जिक्र अल्लाह से कितना करना है, हम इसके ऊपर आज बात करते हैं। अल्लाह ताला ने अपने नाम की खासियत बताई कि मेरा जिक्र करोगे तो एक दिन तुम मज़कूर को पा जाओगे, क्योंकि मेरा नाम लेता है गोया मेरा दरवाजा खटखटाता है। जिसको मैं अपना नाम लेने की तौफीक देता हूं उसने अभी मुझे पाया नहीं, लेकिन मेरे दरवाजे पे खड़ा होकर दस्तक दे रहा है। मैंने कहा ना, तीन काबा है, काबातुल्लाह, ये काबातुल्लाह जो यहाँ का है, अल्लाह ताला तौफीक दे देते हैं। तौफीक देने के बाद हम जिक्र करते हैं, जिक्र की फिक्र करते हैं, जिक्र फिक्र से नूरानियत पैदा होती है, उस नूर से शर्मिंदगी पैदा होती है, आह फिगा पैदा होता है, कैफियत पैदा होती है। जब कल्ब बना हुआ हो ना तो ये तमाम चीज होती है। कल्ब नहीं बना हुआ तो 50 साल भी चिल्ले लगा लीजिए, 50 साल भी खानकाहों में कुर्बानी दे दीजिए, वैसे के वैसे वापस जाएंगे, क्योंकि हमें हमारा मकसूद बिरयानी है, हमारा मकसूद दुनिया है, हमारी दुनिया अंदर से निकली नहीं, अल्लाह से रो रो के मांगना है। एक आदमी करोड़पति होता है और अल्लाह का अल्लाह वाला होता है, एक आदमी गरीब होता है और दुनिया की तमाम बुराइयां उसके अंदर होती है। तो कितना बदनसीब हुआ, ना दुनिया कमाई ना आखिरत कमाई। अल्लाह से मांगे बगैर नहीं बनेगा। कोई कैफियत पैदा होगी जिक्रुल्लाह के बगैर पैदा नहीं होती है, अहलुल्लाह की सोहबत के बगैर पैदा नहीं होती। मैं इसीलिए कहता हूँ कि दोस्तों, ये तीन हमारी मजलिस होती है, इसमें ऐसा ना करो कि एक मजलिस में आए फिर एक महीना नहीं आए, 15 दिन नहीं आए, बात नहीं बनती है। तसलसल के साथ पानी का कतरा, एक कतरा गिरता रहे तो उसमें जमीन के अंदर सुराख कर देता है ना, उसकी सफाई कर देता है। ये दिल की सफाई की सोहबत के बगैर नहीं आएगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं अल्लाह वाला हूँ मेरी सोहबत में आओ, आओ, आपका गुमान मेरे लिए अल्लाह वाला होना चाहिए और मेरा गुमान ये होना चाहिए कि आपके कदम मुबारक की वजह से मेरा तस्किया होता है, मुझे अल्लाह ताला का कुर्ब और मार्फत मिलती है। पता नहीं किसके अंदर किसका अल्लाह का क्या मकाम होगा, किसके मकाम की वजह से किसकी बात बन जाएगी, ये हमें पता नहीं। ये इज्तिमा इसीलिए, इज्तिमा छोटा हो या बड़ा हो, कि फजल खुदाबंदी के अंदर हमें इस वक्त अल्लाह का फजल है, फरिश्तों ने भी इसको घेरा हुआ है। तो जब फरिश्तों की हम सोहबत में है तो अहलुल्लाह, जिक्रुल्लाह, अहलुल्लाह, तो हम अहलुल्लाह, फरिश्तों की अहलुल्लाह की सोहबत में इस वक्त बैठे हुए हैं। तो फरिश्तों का काम क्या है, कुर्ब इबादत है, कुर्ब नदामत नहीं है। इबादत इबादत, वो गुनाह नहीं करता। हम उन ना गुनाह करने वाली उस मखलूक के साथ इस वक्त हम सोहबत में बैठे हैं। उस सोहबत के असरात तो आएंगे आएंगे और लाजमी आएंगे। अल्लाह का ये हमारा फजल है। अब इसमें बरकत कैसे होगी, तरक्की कैसे होगी, कि अल्लाह का शुक्र मांगे कि अल्लाह आपने ऐसी लाइन दी, ऐसा अपना बनाया, ऐसा अपना, मुख्तलिफ बातें अल्लाह से करें, अल्लाह से सिर्फ दुआएं ना करें, अल्लाह से बातें करें, अल्लाह से बातें करें। जो जिक्र की तौफीक हो गई तो अगर अगरचे भी मज़कूर उसको नहीं मिला लेकिन वो दरवाजे तक आ गया, दरवाजा खटखटा रहा है, मेरे मौला मुझे मुझे कब मिलोगे, मेरे मौला मुझे कब मिलोगे। मौला जलालुद्दीन रहमतुल्लाह फरमाते हैं, पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम अगर मुसलसल दरवाजे को खटखटाते रहोगे तो एक दिन दरवाजे से कोई जरूर नमूदार होगा। बहुत देर से खटखटा रहे हो, भाई क्या बात है, तुम क्या जरूरत पेश आ गई है, अगर मुसलसल खटखटाते रहो, मायूस ना हो, इतने दिन खटखटा रहे हैं अब तक कोई सर नमूदार नहीं हुआ। इसी मायूसी को दूर करने के लिए हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाते हैं कि अल्लाह का नाम लेते रहो, एक दिन जरूर उनको रहम आ जाएगा, अल्लाह का कुर्ब ऐसे मिलेगा, ऐसे दिल बादशाह हो जाएगा। मेरे दोस्तों, दुनिया की, आपको दुनिया तो ऐसे मिलेगी कि आप, दुनिया आपके पीछे होगी, आप तंग आ जाएंगे दुनिया के, दुनिया को आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, दुनिया आपके साथ पीछे पीछे आपके इस तरह से साय की तरह चलेगी और दिल के अंदर सुकून और करार और राहत होगा, है ना। असल का शेर सुन लीजिए, ख्वाजा साहब का शेर, खोले वो या ना खोले, खोले वो या ना खोले दर, उस पे क्यों तेरी नजर, तू तो बस अपना काम कर, यानी सदा लगाए जा, बैठेगा चैन से अगर काम के क्या रहेंगे पर, बैठेगा चैन से अगर काम के क्या रहेंगे पर, वो ना निकल सके मगर
पंजरे में फड़फड़ाए जा, अल्लाह से रोते रहे। हमारे हजरत वाले के पास एक शख्स आया, बोला हजरत वाला मेरे कल्ब में दर्द होता है, मुझे कल्ब का कोई लगता है बीमारी लग गई है। बोला कोई कल्ब की बीमारी नहीं है, ये अंदर में जो कल्ब है, अंदर में रूह है, वो फड़फड़ा रही है, वो निकलना चाहती है, वो मौला से मिलना चाहती है, इसके लिए फड़फड़ा रही है, इसके लिए तुम्हें तकलीफ महसूस हो रही है। ये तो नेमत है तुम्हारी, यहाँ क्या रहना है, ऐसे रहे कि वैसे रहे, वहां देखना है कैसे रहे, अल्लाह के पास तो जाना है। मौत तो सबको है, एक सेकंड भी किसी को नहीं मिलनी है, चाहे कितनी एक्सरसाइज कर ले, कितनी जिम कर ले, कितनी खुराक ले ले, उसका फिक्स मुकर्रर है। इस निजाम के अंदर दुनिया की कोई साइंस कोई इसको आगे पीछे नहीं कर सकती। तो अगर गुनाहों से आजादी नहीं मिलती तो फड़फड़ाए जाओ, अल्लाह मियाँ को बेकरारी तो दिखाओ कि उनको रहम आ जाए। सुभान अल्लाह। हाँ, अपने नाम की खासियत बयान फरमाइए कि जिसको मेरा नाम लेने की तौफीक हो गई, इसकी पहुंच मेरे दरवाजे तक हो गई। शरह मशतूत में देख लो, अली बल्ला अली कारी फरमाते हैं इतना बड़ा मुहद्दिस लिख रहा है, मैंने तसव्वुफ बिला दलील पेश नहीं करूंगा, मेरा हर तसव्वुफ कुरान और तफसीर के या बिल हदीस या बशरा के हदीस होगा। हाजी इमदादुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को लिखा कि मैं बहुत दिन से अल्लाह अल्लाह कर रहा हूँ। किसी शख्स ने लिखा, मुरीद ने लिखा हाजी साहब को, हकीम उल्लुम्मत तशरीफ थानी साहब की शेख को, रशीद अहमद गंगोई की शेख को, कासम नानोदवी की शेख को। एक शख्स ने हाजी इमदादुल्लाह साहब को रहमतुल्लाह अलैह को लिखा कि बहुत दिन से अल्लाह अल्लाह कर रहा हूँ मगर कोई फायदा मालूम नहीं हो रहा है। हाजी साहब ने लिखा कि जालिम, ये कम फायदा है कि तू इतने बड़े मौला का नाम ले रहा है, लेकिन फायदा पहुंचता है महसूस नहीं होता। फायदा पहुंचना है और है, महसूस होना और है। जैसे बच्चों का कद रोजाना बढ़ता है, लेकिन रोजाना अगर फीते से नापोगे तो कद बढ़ता हुआ महसूस नहीं होगा और मायूसी अलग होगी। 6 महीने से तक फीता ना लगाओ, 6 महीने तक फीता ना लगाओ, फिर फीता लगाओ तो जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन से कई इंच बढ़ा हुआ नजर आएगा। ऐसे ही अल्लाह का नाम लेते रहो, रोजाना फीता मत लगाओ कि आज हमको कितना कुर्ब हासिल हुआ। कुछ दिन के बाद आपको मालूम होगा कि अब आपको निस्बत अता हो रही है। निस्बत हो रही है तो ख्वाजा साहब ने पूछा कि वल्लुमा से हमें कैसे पता चलेगा, मैं इतने दिन से जिक्र कर रहा हूँ, सब चीज कर रहा हूँ, मुझे निस्बत हासिल हो गई नहीं हुई। उन्होंने 2 मिसाल दी। ये सब अल्लाह वाले हाजिर जवाब होते हैं। उन्होंने कहा कि तुम जवान हुए, तुम्हें किसी ने बताया था कि तुम जवान हो गए हो, कि तुमने खुद महसूस कर लिया था। जिस्म में जान आ जाती है जब निस्बत होती है तो रूह के अंदर जान आ जाती है। दूसरी मिसाल इन्होंने दी कि जब बच्ची प्रेग्नेंट होती है, डिलीवरी का वक्त होती है, तो उसको किसी को बताना पड़ता है कि तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, चलो हॉस्पिटल लेबर रूम में चलो। वो खुद भी जागती है, घर वालों को भी जगाती है, औरों को भी जगाती है कि भाई मेरा टाइम हो गया, मुझे आप लेबर रूम में लेकर जाए। जब निस्बत अता होगी तो जान रग रग से, बाल बाल से आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला की मुझे निस्बत और ये मोहब्बत भी ज्यादा हो गई। तूने मुझे क्या से क्या शौक के फरामा कर दिया, पहले जहां फिर जाने जहां फिर जाने जाना कर दिया। बस पाबंदी से जिक्र करते रहो, रोजाना फीता मत लगाओ और ये अल्लाह के रूट पे चलते रहो, मंजिलें खुद आएंगी इंशाअल्लाह। जिक्र करना और गुनाह से बचना ये रूट है, जिक्र करना और गुनाह से बचना ये रूट है। हमने अपना नेकी के काम के अंदर तो बहुत सारे डाल रहे हैं, लेकिन नीचे गुनाह की टूटी खोली हुई है हमारी। हमारा सब जो किया हुआ ऊपर से होता है सब जाया हो जाता है, जमा नहीं होता, इसीलिए विजन नहीं बनता, इसीलिए कल्ब की धुलाई नहीं होती, इसीलिए कल्ब सलीम हमारे यहाँ पैदा नहीं होता। कल्ब जो है, कल्ब को पहले तो धोना है, वो दागदार नुक्तों को हटाना है, फिर इसकी मालिश करनी है, पॉलिश करनी है, सब कुछ करना है। वो कहाँ से करेंगे जब हमने नुक्तों को, हमारा है ही, हमारी नजर ही नहीं है। अगर जब पहली कैफियत कब होगी कि आपके दिल के आपको कैसे महसूस होगा। मुफ्ती रशीद साहब कहते थे कि थर्मामीटर डालिए, अगर आपकी कैफियत बनने लगी है तो निस्बत अता हो गई है। कैफियत बनाइए, ये नहीं है कि आपके पास क्वालिटी क्वालिटी भी हो क्वांटिटी भी हो, अल्लाह से मांग रहे हैं, हमारी फिक्र यही हो, पहली फिक्र ये हो, जिक्र की फिक्र ना हो, जिक्र की बात की फिक्र हो, पहली फिक्र हो कि मुझे मौका जरा मिल जाए, मैं अल्लाह से बातें करने लग जाऊं, अल्लाह से मांगने लग जाऊं, गैर महदूद रहमतों का शुक्र अदा करने लग जाऊं, रो कर आ करने लग जाऊं, मैं अल्लाह से राब्ता मेरा यूं बढ़ जाए। आदमी मकसूद ये होता है, आता है जाता है बात करता है कि उससे मेरी मुलाकात हो जाए। जब मुलाकात की फिक्र करता है, ये अल्लाह से दुआ है, अल्लाह से मुलाकात करना, और जिक्र है अल्लाह के रास्ते में चलना और दरवाजा को खटखटाना। खटखटाने तक तो आप पहुंच गए हो, अब अल्लाह से रो, मांगो। आहा, मांगने में जो मजा आएगा, यहाँ अल्लाह ताला यहाँ भी देंगे, आखिरत में भी देंगे। लेकिन जल्दी ना करना, जब ज्यादा रोगे ना तो अल्लाह ताला थोड़ा डिले कर देता है। इसलिए मुझे रोना बहुत पसंद है,
बहुत अच्छा लग रहा है। ऐ फरिश्तों देखो, इसने मुझे देखा है नहीं देखा। ऐ फरिश्तों देखो, जन्नत को देखा है, जन्नत भी नहीं देखी। जहन्नम देखी, जहन्नम भी नहीं देखी। हमने कुछ नहीं देखा, फिर भी अल्लाह के ऊपर ईमान रखकर, भरोसा करके हम रोते हैं, मांगते हैं, अल्लाह का शुक्र 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 अदा करते हैं। अल्लाह पाक कितने राजी होते हैं, कितने राजी होंगे। वो अपना करूँ नहीं देंगे, अपनी करूँ देंगे, अपनी माफ कर देंगे। बस पाबंदी से जिक्र करते रहो, रोजा नफीता मत लगाओ, और ये अल्लाह के रास्ते रूट पे चलते रहो, मंजिलें खुद आएंगी इंशाअल्लाह। जिक्र करना और गुनाह से बचना ये रूट है। और ये अल्लाह का, दुनिया में जितने वली हुए हैं उनका रूट यही है, दो चीजें, मुस्बत और मनफी। मुस्बत और मनफी यानी माइनस और प्लस। जिस बात से अल्लाह खुश होता है उसका एहतमाम से करते हैं, अल्लाह की नाखुशी से बचने में जान की बाजी लगा देते हैं, अल्लाह को नाराज, अल्लाह को नाराज। बेगैरती और कमीनापन से अल्लाह को नाराज नहीं करते, अपनी हराम लिज्जतों से बचने में जान की बाजी लगा देते हैं। शयातीन का कितना काम के कान में कह दे इसकी शक्ल देखने में बहुत मजा आएगा, वो शैतान को जवाब देगा, हम ऐसी लिज्जतों को काबिल लानत समझते हैं कि जिनसे रब मेरा दोस्तों नाराज होता है। नाराज की 24 आवर्स की लाइफ है, वक्त की नहीं है कि 2 घंटे 2.5 घंटे में नमाज जिक्र ने फिक्र ने 1.5 घंटा में हमने पढ़ ली। अब तो 2-2.5 घंटे भी कहाँ लगते हैं, घंटा 1.5 घंटे में फारिग हो जाते हैं। वहां पढ़ ली निकल गई, तो 24 घंटे के अंदर सुबह से रात तक छोटी छोटी बातें सबके सुनने, बर्दाश्त करने, माफ करने, और माफ करके फिर इसको इसके लिए दुआएं करना। हाँ, कभी कभी बहुत ज्यादा कोई ज्यादती कर दे तो अल्लाह से कह दे कि अल्लाह इसको हिदायत दे दे, या मुझसे उसको दूर कर दे। ये सामने आता है, नजर पे सामने आता है कि अल्लाह मुझे बहुत तकलीफ होती है, मैं कमजोर हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। हुजूर ने भी यही दुआ की थी, वैशी को कह दिया था, तुम माफ तो कर दिया रजी अल्लाह तआला अन्हु, लेकिन कहा तुम साइड में बैठा करो, तुम सामने आते हो तो मुझे बड़ी तकलीफ चाचा याद आते हैं। बशर्ते गुनाहों का मलेरिया उतर जाए तो मतली और जबान की कड़वाहट खत्म हो जाए, तो तब मेरा नाम की मिठास तुम महसूस करोगे। गुनाह भी करते रहोगे, गुनाह मलेरिया है, बीमारी है, कोविड है। कोविड के साथ आपके मुंह के अंदर कोई चीज लिज्जत की कोई चीज देते थे, मजा नहीं आता था, वो तो मजा नहीं, खाने का मजा नहीं आता। आज हमें गुनाहों का कोविड चढ़ा हुआ है, अल्लाह की नाफरमानी का चढ़ा हुआ है। अगर ये नहीं भी चढ़ा हुआ तो ये मुजाहिदा नहीं है कि मैं मखलूक को कैसे खिदमत करूं, मखलूक से कैसे, हुकूक लिबाद भी तो है ना। अल्लाह ने आपको दिया तो शुक्र क्या है, ये सिर्फ शुक्र है कि अल्लाह आपका शुक्र है, अल्लाह आपका शुक्र है, और आप खुद इंजॉय कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, लाइफ को लेविशली गुजार रहे हैं। शुक्र हर एक का अलग अलग मकाम है। साहब नेमत का शुक्र ये वो तकसीम नेमत करे, जो उसके पास से तकसीम करे, जितना से ज्यादा करे, कोई मशवरे से करे, कोई बात से करे, कोई अखलाक से करे, कोई मामला से करे, कोई माशरत से करे, कोई हंस के करे, तो कम से कम मोहब्बत अपने मातहत जो जो छोटे लोग हैं, अपने से नीचे के लोग हैं, उनसे मोहब्बत भी करे। ये सब सदके अल्लाह ताला यही राजी होते हैं। राजी करिए, अल्लाह को राजी करे बगैर बात नहीं बनेगी। इसकी हुकूमत है, समुद्र में रहकर आप मगर मच्छ से कैसे मुकाबला कर सकते हैं। ये तो माज अल्लाह रहमान है, रहीम है, ऐसे रहमान रहीम है कि वो माफ कर देता है, बख्श देता है, बदला नहीं लेता, बख्शते रहता है, बख्शते रहता है। फिर जब देखता है कि बहुत ज्यादा हदूद से गुजर गया है तो थोड़ी सी इसको तकलीफ दे देता है, ताकि इसका अपना वापस अपनी इस्लाह कर ले, कुर्ब इसको मेरा मिल जाए। तकलीफ होगी, और इसकी जब तकलीफ होगी तो ये आहा करेगा, मुझसे दुआएं करेगा, और मैं उसको खुद दे दूँ। इसमें भी अल्लाह की मोहब्बत होती है, इसमें भी अल्लाह का मकसूद है देना, लेना नहीं है। हमें कॉलेरा चढ़ा हुआ है, बीमारी दुनिया का, दुनिया की मोहब्बत का, तो उस मोहब्बत के अंदर हम अंधे हो गए हैं मोहब्बत के साथ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को फरमाते हैं कि ये कौम अंधी थी, 1000 साल तक हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने मेहनत की, ईमान नहीं लाए, ठिकाने पे नहीं है, क्योंकि हम बसारत में तो है हमारे पास, यहाँ की आंख है, यहाँ की बसीरत के अंधे हैं, यहाँ की हमारी नजर नहीं है, इस नजर यहाँ की नहीं है, विजन नहीं है हमारे पास, हमारे पास बसारत। इस आंख से तो यहाँ तक देख सकता है, विजन से तो वो रशिया और यूक्रेन को भी देख सकता है। ये विजन होता है, सोच सकता है, फिक्र ना हमारी मुसलमानों की सोच रही है, लेकिन कुर्द को मार रहे हैं। ईरान और इराक और शाम के दरमियान में कुर्द एक कौम बसती है, इनको सब मार रहे हैं। कुर्द कौन है? सलाउद्दीन अय्यूबी की कौम है, सलाउद्दीन अय्यूबी की कौम है, वो सुन्नी है, और चारों तरफ से, लेकिन मकसद क्या है, ये जिहादी लोग हैं, वो लोग हैं जो हर एक को अपने को खौफ लगता है कि ये आ जाएंगे तो हमारी हुकूमत खत्म हो जाएगी। तो हुकूमत खत्म हो जाएगी तो दुनिया के लगे हुए हैं ना, दुनिया अब दुनिया बसी हुई है ना कल के अंदर, खत्म क्या होगी, खत्म होना ही है।
آپ खत्म कोई और ये खत्म नहीं करेंगे तो हमें अल्लाह ताला का वक्त आएगा उस वक्त खत्म हो जाएंगे। अल्लाह से हिफाजत मांगनी चाहिए मेरे दोस्तों। आज आपको मैं अक्सर एक शेर पढ़ता हूँ उसके बारे में। हाँ, हम अक्सर शेर पढ़ते हैं, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई। हर तमन्ना, ये जब आप अल्लाह से बातें करें ना तो कुछ शेर भी याद करें। अल्लाह से बातें करें, तू मेरा मैं तेरा, तेरा फजल में रही। मौलाना फारूक साहब थे एक शेर में घंटे घंटे ताजुद के अंदर रोते रहते करके थे मौलाना फारूक, हमारे सिलसिले के बुजुर्ग थे। तू मेरा मैं तेरा, तेरा फजल में, अल्लाह से रोते रहे। तो ये एक शेर है, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा, अब तो आजा, अब तो खलबत हो गई। इसके बारे में मैं थोड़ा सा सुनाता हूँ आपको। ये ख्वाजा मजरूब साहब का शेर है, मजरूब रहमतुल्लाह अलैह का शेर है। हकीम उम्मत ने ये शेर सुनकर फरमाया था कि ख्वाजा साहब अगर मेरे पास 1 लाख रुपया होता तो आपको इस शेर पर इनाम दे देता। सारे आलम के खालिक को बताओ कौन है, सारे आलम का खालिक कौन है, सारे आलम की मुर्गियों का खालिक, सारे आलम के सेब अंगूर के खालिक, सारे आलम के नेमतों और लिज्जतों का खालिक कौन है, सारे आलम के हसीनों का खालिक कौन है? अल्लाह, अल्लाह है। जिस दिन में वो दिल में आता है, जिस दिल में वो अल्लाह आता है तो वो दिल सारे आलम पर से मुस्तगना हो जाता है। एक बुजुर्ग ने फरमाया, अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं कि अल्लाह अपने किसी बंदे को वली और आशिक के दिल के अंदर एक पूरा आलम जमा कर दे। अल्लाह ताला पूरा आलम का रस उसके दिल में घोल देता है। अपनी चटाई बोरियों पर जब चटाई और बोरियों में अल्लाह अल्लाह करता है तो एक सल्तनत खुदा की याद में बैठे तो सबसे बेगरज होकर तो अपना बोरिया भी फिर हमें तख्त सुलेमान, ये अल्लाह ताला ऐसे ही दिल के अंदर खुशी अता फरमा देते हैं। तो ये शेर के ऊपर हजरत को बार बार पढ़ाते रहे, और हमारा हजरत वाला भी जब ये कोई शेर पढ़ता, ये शेर आता तो इसको बार बार रिपीट करवाता, और पढ़िए और पढ़िए और पढ़िए इसको। हमारे यहाँ इस सब दुनिया से मोहब्बत की वजह, हमारी जुडिशरी को देख लीजिए, इंसाफ। हम अब वो सिर्फ हम जुडिशरी की बात करते हैं, हमारी बात चली थी कि हमारी जुडिशरी खराब है। जुडिशरी खराब नहीं, हम सब जुडिशरी का, हम सब जज है, हम सब जज हैं। हमारी अपनी हर एक की घर की जुडिशरी खराब है। हमने हर एक के लिए अलग अलग पैमाने फीते बना लिए हैं। अगर हमारे यहाँ इंसाफ होता, हमारे